One more Happy Minds. 1134th Happy Minds. Your way. Namaste. Namaste, everybody. Can you put me on the screen, please? Namaste, Prashant, Arshu, Bhagyashri, Mangal, Suyash, Rajender, Sanjay. Wow, wonderful to see all of you. Pramod, Naren, come in Delhi or in Pune, Santosh, Anjali. Wow, fantastic. Lovely to see all of you. Vivek, Om Prakash, and many of you I've missed. You're just names zipped by. Abhishek, Neela. अब जिसका नाम नहीं लिया वो ऐसा ना अब अपनी विंडो खोल लो बुरा मान जाओ कि मेरा नाम नहीं लिया. I'm just reading random names which are just popping out on the screen, and there's so many of you, so the names are just going up. Welcome to this Happy Minds, and जो लोग नए हैं, welcome to our family of Happy Minds. Welcome to Chrysalis. Welcome to this fraternity of Happy Mind seekers. And just to share with you, we have been doing these sessions for last 25 years, and we have been going on great. Every week, every Saturday morning, हम लोग मिलते हैं सुबह 7 बजे, and the idea is just to create some energy within us, to share some insights, to share with you some success stories, and get inspired enough to live a great day and to make a great week for ourselves. That's what we do in Happy Minds. So अगर आपने पहली बार join किया है, stay sure that you will survive this one and a half hours which we have with us. And जैसे इतने सालों से HM रहा है, आज भी HM inspire करके जाएगा बहुत सारे लोगों को. So you can just type in the city you're from, and you can just type in first in the city you're from. So I'll come to know if you're new to Happy Minds. So many of you joined from. So we have people joining in from across the country. We have people joining up from abroad, and we have some die-hard fans, who join from all over the world. And I think Mangal also. I saw again from US. And so we have Sukhpal Punjabi, but he is from Pune. So he's not from Punjab, he's from Pune. Welcome, Sukhpal. And those who have joined in for the first time, aap apna naam and city type kar do, so I'll come to know. What we do in Happy Minds is we start with meditation, and I want you not to miss a meditation. मैं बार-बार बोलता हूँ, मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ. Don't miss out on meditation. Don't miss out on those 5-7 minutes. You never know. क्या हो सकता है, क्या possibility हो सकती है, you never would know, right? In fact, last week when I took Happy Minds, it was Mahashivratri on that day. So ऐसे होता है कभी-कभी जब Happy Minds होता है, and we end up having one or the other festival there in Happy Minds. So last week was Mahashivratri, and a few questions popped out on about Mahashivratri. So I'm no Gyani, no Pandit on the festival side, but I do carry my own clarity for the festivals, and whatever suits me, whatever connects with me, I hold on to that. So मैं अपने बच्चों से share कर रहा था कि महाशिवरात्रि क्या है, because we were fasting and we were having kind of a different food. तो हमारे यहाँ जो ना फलाहार बनता है, I'm sure आप लोगों के यहाँ भी बनता होगा. So it's a special kind of food which is made only during certain festivals. तो चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, तो एक अलग तरह का हमारा खाना बनता है. नवरात्रि हो तो अलग बनता है खाना. So the kids they kind of connect the food with the festival. So हम ऐसी बात कर रहे थे कि शिवरात्रि क्या है and शिवरात्रि क्यों मनाते हैं. So I was sharing with them that it's not about Shivratri, but ये सारे festivals जो हैं, before I just give you some clarity on festival, today is a very beautiful subject. The subject is, how do we make more money? How do we make more money? And I'm going to tell you, how will you make more money and by not working hard on your job. तो और मैं आपसे कहूंगा कि अपने जॉब में don't work hard. अब मैं वो क्या है, क्यों है, मैं आपको बताऊंगा. So before you hang on to the subject, and then I'm going to give you some clarity on this. It's a very beautiful, simple, interesting subject, that how do you make money by not working hard on your job. So hang on to that. So coming back to Mahashivratri. So I was sharing with them कि मेरे हिसाब से महाशिवरात्रि या any festival for the matter, ये क्या है, क्यों होता है अपने देश में, अपने culture में. तो ये we're talking about
uh, a country which has got thousands of years of history behind, a culture behind. तो हमारे देश में ना हर दिन एक फेस्टिवल होता था, हर दिन. तो आज भी अगर आप देखोगे, आप पूरे देश को जोड़ोगे, तो कोई ना कोई प्रांत में, कोई ना कोई एरिया में कोई फेस्टिवल चालू होगा. तो 365 दिन, 365 फेस्टिवल्स, राइट? सो ये फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप इसको समझो कि 3 लेवल्स में अगर आप इसको समझ सकते हो. सो आई वाज शेयरिंग विद गौतम एंड सिद्धार्थ दैट there are certain rituals, there are certain traditions which are there, and these rituals and traditions are for the masses. जैसे खाना कैसा बन रहा है, आपने उस दिन some kind of a ritual you got to do, कुछ पूजा पाठ करनी होती है, and maybe people have no connect beyond that. उनको आगे का कुछ मालूम नहीं है, पीछे का कुछ मालूम नहीं, but उनको वो ritual मालूम है. So they connect with the creator, they connect with the spiritual aspect only through that task. तो वो अपने कार्य के थ्रू जुड़ जाते हैं प्रभु से. तो माय फादर ही लव्स, बाबूजी को बड़ा मजा आता है खाना बनाने में, तो उन्होंने पूरा फलहार बनाया था. सो आई सेड, सी लुक एट योर दादू, ही इज कनेक्टेड विद द फेस्टिवल. उनको आप पूछोगे महाशिवरात्रि क्या है, सो बियॉन्ड सर्टेन थिंग्स ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने उसको एंजॉय किया है एक फेस्टिवल के रूप में, कुछ कार्य करके. तो उन्होंने वो फलहार बनाया, 5-6 तरह के उन्होंने डिशेस बनाई, विच ओनली वो हम व्रत में जो खाते हैं, कोटू के आटे की उन्होंने बनाई. I said, so look at the way he is celebrating the festival. तो masses जो है, जो आम जो जनता होती है, शायद all over the country, not many have had the privilege in the past to listen to the spiritual side, to listen to the other side of why the festival. So उनके लिए festival जो है एक शायद एक celebration है, festival एक कुछ कार्य करने का है. And that's why in festivals you kind of decorate your house, you clean your house, and there's so many things attached to it. तो एक रिचुअल और एक रिचुअल और एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है एक फेस्टिवल का, तो वो भी होना चाहिए. उसके ऊपर एक सेकंड लेवल आता है, where there's a historical side of the festival. तो कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगी ना उसकी. जैसे महाशिवरात्रि थी, तो महाशिवरात्रि में there are the historical aspects to it, that it was Mahadev and goddess Parvati, they got married on that day. So that's why people celebrate Shivratri, right? एक और पीछे का एक हिस्ट्री है, that on that day Mahadev did Tandav, and that's why it became Mahashivratri. So ये historical side हो गया. So in Deepavali you have the history behind it, that why we celebrate Deepavali. उसका एक tradition है, एक ritualistic side है, जो अब हम करते हैं कि खाना बना लिया, कपड़े खरीद लिए, घर सजा लिए, दिए लगा लिए, पटाखे जला लिए. From ritual to the historical, and the third level is the spiritual and the scientific level. So महाशिवरात्रि का जो spiritual and the scientific level is that हमारे कल्चर में ऐसा देखा गया है that we follow the lunar calendar. So every 14th day of the lunar calendar is called the night of Shivratri, right? The night before the new moon starts. So that's a night of Shivratri. Shivratri बोलते तो शिव की रात, Shivratri. And महादेव है, जो शिव है, he is known as a lord of energy. तो ऐसा देखा गया है, ऐसा साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया गया है, that on the 14th day of the lunar calendar, the position of the earth is such, or the position of the earth and the moon and the planets is such, that the energy levels are high in that night. So that's why it is called the Shiv ki Raat, Shivratri. So Shiv is the lord of energy, और आज energy levels high हैं, different हैं, इसलिए शिवरात्रि. और ऐसी 12 रातों में, जो साल में 12 रात आती हैं, उसमें से जो महाशिवरात्रि है, उसको महाशिवरात्रि इसलिए बोलते हैं because somewhere in the month of February and March, जो ये आती है night, 14th night of the lunar calendar, जो February और March में महीने में आती है, in this the planet is positioned in such a way that the energy is the highest. Energy is the highest. तो इसलिए कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन के रात को आप सोए ना, आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, या फिर अगर मेडिटेशन ना करें, ध्यान ना करें, कम से कम आप लेटे ना. You should sit, you should stand, you should be vertical, so that you can take the energies which the planet is giving to you. And of course the other side is the harvesting side. हर फेस्टिवल के साथ कुछ हार्वेस्टिंग होता है, या प्लांटिंग होता है, या सोइंग होता है, and weather patterns also change in. So it is the welcoming of the spring through Mahashivratri.
एंड बहुत सारी चीजें होती है. तो आर फेस्टिवल्स हैव हैड the scientific, the agricultural, the spiritual, the traditional, the ritualistic. आपको जो जिस चीज से जुड़ना आप जुड़ जाओ. Isn't that a beauty? कि कुछ लोग रिचुअल से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट से जुड़ते हैं, कुछ लोग उसके हिस्टोरिकल से जुड़ते हैं, कुछ लोग उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से जुड़ते हैं. सो आई जस्ट शेयरिंग दिस विद यू कि फेस्टिवल्स को सिर्फ ऐसे मनाओ मत, सोचो आप कौन से एस्पेक्ट से जुड़े हो. एंड देयर एंड इट डजंट मैटर कौन से जुड़े हो आप, फ्रॉम ऑल द 3-4 लेवल्स आप कहां जुड़े हो, इट डजंट मैटर. What matters is you are not doing it blindly. You're doing it with some connect, and you will realize how rich our culture is. ये आपको एहसास होगा. तो just a small sharing from my side on the festival side. बाकी आपके इसके अंदर इतनी डेप्थ है, आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, जितना समझना चाहो समझो. चलिए जी, आज की कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं बिफोर आई मूव ऑन. एंड आज का मैंने जैसा आपको बोला सब्जेक्ट, हाउ डू वी मेक मनी. आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू. यू नो, लास्ट सेशन आई स्पोक ऑन द वेल्थ साइड, और बहुत लोगों का ऐसा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, फीडबैक आया, एंड पीपल सेड अरे वाह अच्छा था. एंड आई वाज वंडरिंग कि यार ये वेल्थ का मैंने सब्जेक्ट बात करी एंड देयर पीपल गोइंग गागा अबाउट इट. मैं उससे भयंकर बातें करता हूँ तो वो इतना हिट नहीं होती हैं. So somewhere wealth and money, ये ऐसी attractive चीजें हैं जो people love to listen, love to hear about it. मुझे याद आया बहुत साल पहले, I think 2014-15 के बाद है, उस समय ना the digital marketing was picking up pace across. So मेरा एक digital marketing का एक consultant था, he had come over and he said, why don't you make a video on a subject of how to become a millionaire, 10 ways to become a millionaire. I will show you how to become a millionaire. And मैंने उसको सुना, मैंने कहा क्यों पागल है क्या? Do you think I will talk on this subject, how do you become a millionaire? Why will I talk on this subject? I will talk about how do you become a better human being. How will I talk? I will talk on how will you become a better entrepreneur. I can never talk and I can never speak on, I can never put my title there, become a crorepati. मैं कहा ये क्या बकवास बातें कर रहा है. And he shared with me 2015 कि सर यही बिकता है. तो I did not agree and I did not speak on that subject. I said तू मुझसे पूछ ले कैसा बनना है, मैं वो बता दूंगा, लेकिन ये पैसे की बात मैं नहीं कर सकता. And I don't connect with it. And I never teach my subjects to make people millionaires. I never speak on the business side to make people crorepati. I always speak कि तुम अच्छा बिजनेस करो ना, तुम अच्छा काम करो, अच्छी जिंदगी जियो, तो पैसा तो आ जाएगा. वो मुझे बहुत कन्विंस किया कि नहीं सर आप समझते नहीं हो, दुनिया को अट्रैक्शन चाहिए, दुनिया को ये चाहिए. एनीवेज, आई थिंक इट वाज माय बैड और मैंने उसको पकड़ा नहीं. बट आई स्टिल होल्ड ऑन टू इट दैट आई विल नॉट स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट दैट 10 ways to become a millionaire. नहीं, you become better and you make money. So but आज का सब्जेक्ट जो है is not about you becoming a millionaire, billionaire, but it is all about you making some decent amount of money, and that too by not working hard on the job. So ये एक interesting subject है, which I'll share some insight on it. But before that, some success stories for all of you. And success story क्या है जो लोग पहली बार join कर रहे हैं? These are stories which come to me from people who have been listening to Happy Minds or people who have been doing my programs. और वहां पर वो मुझसे कुछ share करते हैं तो फिर मैं वो stories को सुनाता हूँ. So that some good things make noise, right? Otherwise the market down है, ये हो रहा है, war हो रहा है, सब चलते रहेगा. उसमें कुछ positive news तो होनी चाहिए. And that's what I intend to do. So the first success story is from Harpal Singh. He says, sir, I'm from Bareilly. Oh, Bareilly mein jhumka gire wala Bareilly. And he says, I listened to HM for the first time on 18/2. ऐसा लिखा है उन्होंने 18/2, मतलब 18 last week. Found it very useful. The lecture gave me the reason why I was not wealthy till now. Wealth pe hai ye bhi. I also watched HM again with my son and wife. My son liked the subject of dividing the money earned into 4 categories. Thank you so much. ऐसा उन्होंने लिखा. So thank you, Harpal, and I wish you that you become more wealthy listening to me. But one thing, I don't lecture. उसने कहा ना, I listen to the lecture. ये lecture नहीं होता बाबा, ये sharing होता है. So I share whatever comes to my mind in the night before or the morning when I get up at 4. So what comes to my mind, I just share on that. And मेरी ऐसी कोशिश होती है, ऐसी मेरी इच्छा होती है कि हर हफ्ते मैं एक नया सब्जेक्ट पे बात करूं. And it's difficult because life we and how many subjects, but God has been kind that
something or the other comes up and I speak on a subject which is different than the previous Happy Minds. So happy that you could listen with your son. And I had spoken about how do you divide your money which you earn, and especially आपके जो बच्चे हैं अगर वो समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि जो उनको पैसा आ रहा है या जो वो पैसा कमा रहे हैं या कमाएंगे उसके साथ करना क्या है, and if they can understand that, so I'm sure they will end up creating a lot of wealth for themselves. ये बात तो पक्की है. So good for you Harpal, and जिन्होंने मिस किया है, maybe you can go to the academy of mine, MG Academy है, वहां जाके आप ये वीडियो देख लीजिए and you will come to know what I shared. जिनका last year मिस हुआ, so आप MG Academy में आप जा सकते हो. You can see on the MG Academy के नाम से आप टाइप करोगे the MG Academy तो आ जाएगा वहां पर. Second is sharing is from Hiren Shah. He's from Replus Energy, and I met him yesterday, and he was very excited, and he's always been very bubbly and excited about his work. So they're doing a lot of work, and he says, "Sir, my factory is almost ready," and he's coming up with a factory which is into manufacturing of lithium batteries, and he says, "So this is one significant step for EV and green energy solutions and initiatives in India." And I've also been working a lot on the green energy or the energy solutions with a few companies. So as a mentor there, and I could connect with what he's saying. And इस गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का इतना बड़ा थ्रस्ट है ऑन द ग्रीन एनर्जी. कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने फिर उसमें बात करी है ग्रीन एनर्जी के ऊपर. सो ही सेज सर इतना बढ़िया काम चल रहा है. एंड एक सैंपल गांव हुआ था गुजरात में मॉडर्ना के नाम से, which became a Moderna, if I'm pronouncing it right, I don't know. And he says he was sharing a story about that village is the only village in the country which is off the grid in terms of electricity. उसका खुद का solar production है, उसका खुद का solar storage है, and 24 घंटे उस गांव को बिजली मिलती है. And sometimes we have excess power and we supply that village provides power to the grid. एंड नॉट ओनली जो उस गांव के जो 2000 घर हैं उन घरों में बिजली है, वो 150 रुपए महीना भी और एन एवरेज कमाते हैं बाय सेलिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट विलेज वाज स्पोकन अबाउट बाय यूनाइटेड नेशंस. एंड ऐसा मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि ऐसे 250 गांव बनने चाहिए पूरे देश में जहां पर बिजली जो है वो खुद अपनी बना रहे हैं और सरप्लस बिजली भी वो सप्लाई कर रहे हैं ग्रिड को. तो व्हाट इनिशिएटिव्स, उसका पूरा हमने काम किया था. Right from installation to back end to battery, उनका 20 megawatts का बैटरी का पूरा बैकअप है. So he says this is what we are doing. And then he said, sir, we have moved from 2 crores last year after doing Arasamasti. We are now moving to 20 crores this year. And next year we are now going to jump to, next 2 years you will see us at 200 crores plus. I said, wow, this is some confidence. So happy that the company has progressed, and I'm sure the battery setup will come up great. If you, my team has put in the MG Academy, details there on the chat. If you want to connect with the MG Academy, then you can enroll for that. And the last sharing is a beautiful, lovely sharing from Vishali Sharma, one awesome Happy Minds seeker, one seeker of life, one of the most awesome seekers I've come across in my journey of last 25 years. She has not missed any HM for the last, I think, four years or so, whether it be offline or online. And been with me for last I think almost 5 years now. And so she sent me a message where she had to go for a prayer meet in a family, and she was sitting there. It's a tragic situation at home, and they're there for a prayer meet when she was asked to share, and she spoke. She was asked, so she spoke. उन्होंने बात करी, and she says everybody was kind of stunned, surprised by the way she spoke. And because everybody, उनका हर एक की इमेज होती है एक इंसान के बारे में. So all the family members had an image of Vaishali कि वो कैसी होंगी, कैसे बात करती थी. And she says I was surprised कि मेरे बात करने के तरीकों को लोगों ने accept किया, सराहा. And then she says that last 3-4 years of me continuously being a part of Happy Minds, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मेरा communication कैसे change हो गया. And I remember once she was sharing in Happy Minds, and I told her, make it short, make it crisp, make it impactful. And she says, वो मैंने pick up किया और अब मैं अपने communication को कितना impactful बना सकती हूँ मैं सोचती हूँ. And this transformation happened.
तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ओवरनाइट नहीं आता. We need days and months and weeks of hard work, practice behind it, so that that aspect becomes better. Whatever aspect, it may be communication, it may be the business skills, it may be people skills. वो अच्छा होने के लिए आपको लगातार बार-बार एफर्ट डालना पड़ता है. And I think that's what she did, and she was recognized and she was appreciated. So great going, and all the best for all the future things. And just last sharing from my side about last week, we had a great, awesome week in terms of we had Arar Samasti batch rolling out. Lovely 33, 34 entrepreneurs are there with us who are on this journey. And the next 8-9 months are going to be phenomenal. क्या जबरदस्त एनर्जी होती है एंटरप्रेन्योर्स में. और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई सीखने को तैयार होता है, जब कोई इंसान नया कुछ कर रहा होता है, आप भी देखो ना अपनी लाइफ में, आपने जब कुछ नया सीखा या नया सीख रहे हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज सीख रहे हो आप, चाहे आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, चाहे आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, तो आपके एनर्जी लेवल्स कुछ डिफरेंट होंगे. आपके चेहरे पर अलग ही एक ग्लो हो सकता है. आपकी बातों में वो नयापन दिखाई देगा. सो यू काइंड ऑफ बिकम क्रिस्प. यू काइंड ऑफ बिकम, जैसे वो ना नया कुर्ता जो है, कुर्ता वही है, लेकिन वो स्टार्च लग के आया, और वो स्टार्च लगा वो कुर्ता आप पहनते हो तो कड़क लगता है कुर्ता. तो वैसे ही इंसानों के साथ होते हैं जब वो इंसान कुछ नया सीखते हैं. और जब आप नया नहीं सीखते हो, तो जैसे वो कुर्ता आपने बहुत दिन पहन लिया, तो उसमें मेरा सलवट आ गई, वो क्रम्पल्ड हो गया है, तो वो कुर्ता फिर सॉफ्ट सा हो जाता है. वैसे ही इंसानों के साथ भी हो जाता है जब आप अपनी सोच समझ को आप डेवलप नहीं करते हो, नया नहीं करते हो, बिल्ड नहीं करते हो, अपनी काबिलियत पे काम नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप वो सॉफ्ट हो जाते हो, मुस जाते हो. तो अगर कड़कपन रखना है अपनी बातों में, अपनी सोच में, अपने चाल में, अपने पूरे ओवरऑल एग्जिस्टेंस में, तो मेरा आपसे यही एक सजेशन रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, दैट keep on learning something new, something different. Keep on learning, keep on being on that path, be a learner. Let the learning curve be up, up, up. कुछ ना कुछ करते रहो. और आज मैं थोड़ा उसके बारे में ही बात करूंगा, बट लेट मी स्टार्ट ऑन दिस वेरी नोट. तो मुझे बताओ कि आप लोगों को सुनना है कि नहीं. हाउ डू यू मेक मनी बाय नॉट वर्किंग हार्ड ऑन ए जॉब? शांत कहता, भाई यही सुनने तो आए हैं, पैसा कैसे कमाना है. हाँ, ओके, चलो ठीक है. साउंड्स ट्रिकी. लाइफ इज ट्रिकी अंजलि. ओके, चलो आरशु को तो मिली होगा, एसेट से कमाएंगे पैसे सर. ठीक है, जरूर सुनना है. हाँ, चलो ठीक है. नाउ let me share a story with you, and from there I'll build it up. Long back, I think 17-15 साल हो गए, I was traveling, and I think I was in Ahmedabad for a talk. तो मेरा talk खत्म हुआ, and there was a Chrysalis there who knew I was coming, and he was kind enough to invite me to his home for a cup of tea. And उसने प्यार से बुलाया मुझे, तो मेरा जाना तो बनता था, और मैं उसके घर गया, and we had tea. Lovely small house, and his parents were there, he was there, his sister was there. तो ऐसा ही 4 लोगों का बढ़िया अच्छा सा परिवार, and एक छोटा सा बढ़िया सा घर. And I had gone there for the love which he reflected, and अच्छा लगा. वहाँ चाय पी, थोड़ा नाश्ता किया, and मैं बिल्कुल I'm okay with anything. I'm not that वो चाय के साथ 4 नाश्ते होने चाहिए, and the house has to be there like this, and so the love is much more important than anything else. तो मैं तो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था. I was enjoying my entire evening, talking to his parents and talking to him. फिर चाय खत्म हुई, तो फिर नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन होता है, तो मैंने उसको पूछा कि एंड बाकी कैसे चल रहा है सब कुछ अनिल. तो ही सेज, सर इतना अच्छा नहीं चल रहा है. तो मैंने कहा, घर में सब ठीक है? हाँ, बाकी सब ठीक है. तो मैंने कहा, क्या अच्छा नहीं चल रहा है? सर जॉब वाइज, financially I'm not okay.
देन आई कुड कनेक्ट, अब उसने बोला तो फिर आई कुड कनेक्ट द हाउस एंड आई सेड हाँ भाई ये तो अच्छा हो सकता था घर। एंड बट आई सेड तूने अभी तो बोला तू 8 साल से काम कर रहा है, एंड हाँ काम तो कर रहा हूँ सर, बट द कंपनी डज नॉट पे। उसने मुझे बोला द कंपनी डज नॉट पे। तो मैंने उसको देखा एंड आई रिमेम्बर दैट मोमेंट वेयर आई लुक्ड एट हिम, और वो मुझे बोल रहा है कि द कंपनी डज नॉट पे। आई डिड नॉट टेक माय आईज ऑफ हिज फेस एंड आई सेड नो द कंपनी पेज। द मोमेंट आई सेड द कंपनी पेज, उसको लगा मैं कंपनी को जानता हूं। तो पूछा मुझे सर यू नो द कंपनी। मैं कहा नो इट डजंट मैटर बट आई एम सेइंग द कंपनी पेज। नहीं सर नहीं, कंपनी डजंट पे। जब उसने ऐसा थोड़ा सा वो उसकी आवाज में थोड़ी और जान आई और थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ, द कंपनी डज नॉट पे सर। तो मैंने भी हल्का वॉल्यूम बढ़ाया, मैंने कहा नो द कंपनी पेज। वो उठ के गया अपना, उसने बैग निकाला, उसमें से उसका सैलरी स्लिप था वो दिखा रहा है, सर दिस इज व्हाट द कंपनी पेज, आई एम टेलिंग यू द कंपनी डज नॉट पे। आई सेड द कंपनी पेज बट इट डज नॉट पे यू। एंड द मोमेंट आई सेड दिस कि कंपनी तो देती है लेकिन तुझे नहीं देती है। There was a pause, there was a silence. It was as if something hit him. And I kept on looking at his face. Because मुझे देखना था उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हिट हुआ कि नहीं हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। And it took some time for that boy or youngster to digest that fact that कंपनी तो देती है पैसा, हाँ उसको नहीं देती। कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद मैंने उसको पूछा कि क्या तेरी कंपनी में ऐसे कोई लोग हैं जिनको कंपनी जो तेरी सैलरी है उसका 2x या उसका 3x देती है। तो कहता हाँ सर 2x भी है, 5x वाले भी है। तो मैंने कहा देख इसका मतलब कंपनी देती है पैसा, ये बात लगा कि तेरे को पैसा नहीं देती है लेकिन कंपनी देती है पैसा। सो नेवर से दिस द कंपनी डज नॉट पे, द कंपनी पेज। इनफैक्ट मैं आपको बोल रहा हूं, आप सबको जो सुन रहे हो मुझे, द वर्ल्ड पेज, द वर्ल्ड इज विलिंग टू पे, बट हमें नहीं देती, बस वो बात अलग है। और अगर तुम्हें नहीं देती है पैसा तो ये सोचने वाली बात है कि क्योंकि दुनिया तो देती है ना सबको पैसा, और दुनिया तो विलिंग है, बट तुम्हें देने के लिए विलिंग नहीं है, तो ये तो मामला गंभीर है सर। ये तो मामला गौतम गंभीर है कि दुनिया देने को तैयार है लेकिन हमें नहीं दे रही है, तो मामला गंभीर है। एंड ही अंडरस्टूड, उसने इतना अंडरस्टैंड किया कि मैं दोबारा उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। बट आई विश ही मस्ट हैव ग्रोन। अभी तो 15 साल हो गए, मुझे भी वो नहीं रहा, बट आई विश हिम दैट wherever he is he would have understood। और मेरा ना बहुत बड़ा चक्कर होता है लाइफ में, मैं कहीं जाता हूं तो मैं सच बोल ही देता हूँ, तो चुपचाप चाय पी के आ जाता, क्या क्या बुरा था, लेकिन नहीं है मुझे ऐसा। मैं बोल के आ गया कि मुझे दिख रहा है वो कि वो बच्चा समझ नहीं रहा है इस बात को, वो कंपनी में डाल के बैठा हुआ है बात। तो मुझे ऐसा जब पीछे मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार आई विश आई वुड हैव नॉट स्पोकन इट। उसका मूड नहीं खराब करता, उसका इवनिंग भी नहीं खराब करता। फिर मैं कहता छोड़ना, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं ना, व्हाई वुड आई चेंज, एंड आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। I just stated the fact and I told him something which would have made him a better person अगर उसको हिट हुआ होगा तो। एंड मुझे लगता है हिट होना ही चाहिए, क्योंकि वो 8 साल से अगर जॉब कर रहा है एंड इफ द कंपनी इज नॉट पेइंग हिम बट कंपनी इज पेइंग टू अदर्स, इसका मतलब सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बोलने वाला हूं और जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। If you want to be successful, if you really want to make money, if you really want to make money and you really want to be successful, please don't work hard on the job। अपने काम पे मेहनत नहीं करो। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपको कामयाब होना है, आपको पैसा कमाना है, तो प्लीज अपने काम पे मेहनत ना करो, अपने ऊपर मेहनत करो। डोंट वर्क ऑन द जॉब, वर्क ऑन योरसेल्फ।
हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम बाहर गधा मजदूरी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अरे आप जहां कर रहे हो काम, आप वहां मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो आप लेके जा रहे हो अपने साथ, अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, आपने उसमें तो काम नहीं किया है यार। वो आपकी प्री हिस्टोरिक टाइम की है। आप बाबा आदम जमाने के हो, और आप बाबा आदम के जमाने की अपनी सोच समझ को लेके आप जा रहे हो वर्तमान में, और वहां मेहनत करे जा रहे हो। इट इज दैट ओल्ड स्टोरी जो हमने सुनी थी, कि वो जो एक्स है लकड़हारे का, जो कुल्हाड़ी है लकड़हारे की, वो कुल्हाड़ी ब्लंट हो गई, वो कुल्हाड़ी को तेज नहीं कर रहा है, शार्प नहीं कर रहा है, वो अपनी उस ब्लंट कुल्हाड़ी को लेके जा रहा है और उसी से पेड़ काट रहा है। तो मेहनत कर रहा है, गधा मजदूरी कर रहा है, और मेहनत कर रहा है, और मेहनत कर रहा है। अरे बाबा, वहां मेहनत कम कर, उसकी कुल्हाड़ी पे शार्पन करने की मेहनत कर। So I'm just sharing this with you कि please work on yourself, and then when you have worked on yourself, and then when you go to the place where you're working, why will you not shine? And why will they not pay? They pay. Everybody pays. All great sensible companies, they pay. All sensible customers pay for great products. Why will they not pay? तो आपको फिर एक और चीज समझनी पड़ेगी कि इकोनॉमिक्स क्या है। एंड ये इकोनॉमिक्स अगर समझ में आ गई ना, कि तो फिर जब इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी आपको, तो ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा गहरा हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम मेरे साथ यहां तक समझ में आए कि नहीं, ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर प्रोफेशनल्स, यू आर एंटरप्रेन्योर्स, यू आर होम मेकर्स, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरी बात आपको हिट करी कि नहीं करी। Are the customers who are paying a better price to some other company, some competition of yours? सर घर बैठे बैठे लग रहा है आपने जूता मारा। बेटा मैं चप्पल गीला करके के मारने के लिए फेमस हूं मैं। I understood very late in my career, but happy that you understood, happy that we all understood, and happy that I'm making you understand. And I'm going to share something which is, नरेंद्र, आप जो बात कर रहे हो ना, ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि उम्र के साथ ना लोगों का अड़ियलपना बढ़ जाता है। The age which you are in, I'm talking about a gentleman here called Naren Goyal, और वो मेरे साथ रसमस्ती बैच में है। I don't know whether he wants me to speak on him, but let me share. He comes from a very high position, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा में टॉप पोजीशन में थे। And when I see him, when I meet him, the kind of clarity which he brings in to his work, the kind of clarity he brings into the questions which I have for the batch, business के acumen, काम की समझ इतनी जबरदस्त है कि मुझे लगता है कि यार ये तो इतने सुलझे हुए हैं, उसके बावजूद भी एक इंसान सोचता है कि मुझे और अच्छा बनना है। उसके बावजूद भी इंसान कह रहा है कि मुझे लगता है कि यार 10 खामियां हैं जिसको मुझे इंप्रूव करना है। तो मुझे लगता है ये एक क्रिस्पीनेस की एक पहचान, एक वो है, रिफ्लेक्शन है। जो बोला था क्रिस्पीनेस, आप नए हो, पढ़ते हो, कुछ नया करते रहते हैं, तो क्रिस्पीनेस आता है, एक कड़कपन आता है। तो ये कड़कपन की एक रिफ्लेक्शन है। और आप अगर अपने आसपास देखोगे ना, यू विल नॉट बी सरप्राइज टू नोटिस दिस सिंपल फैक्ट कि आप जिम जाओ, तो जिम्नेजियम में आप जाओगे तो देयर आर पीपल जिनको दोज हु आर ओवरवेट, और या जिनका वजन बढ़ा हुआ है, एंड यू विल सी पीपल हु आर फिजिकली फिट, जो मतलब जिनका फ्लैट टमी है, या उनका सिक्स पैक है, या उनके अच्छे मसल्स बने हुए हैं। आप ऐसे दो तरह के लोग वहां पाओगे, बाकी लोग तो हम घूमते रहते हैं, जो आते रहते हैं, लेकिन ये दो तरह के लोग आप पाओगे, एक जो हैवी है, और एक जो फिजिकली बड़े फिट है। और आप देखोगे, एक चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, वेरी हाई चांसेस, मैं नहीं कहूंगा 100%, बट वेरी हाई चांसेस कि जो फिजिकली फिट है
जो एक्सरसाइज ना करे आज चलेगा, वो अपने एक्सरसाइज के प्रति ज्यादा कमिटेड है। और जो इंसान ओवरवेट है, जिसको कमिटमेंट की पराकाष्ठा में होना चाहिए, जिसको कमिटमेंट के टॉप लेवल पे होना चाहिए, वो एक्सरसाइज करने से दिल चुरा रहा है, वो भागने की सोच रहा है, वो अपने ट्रेनर को, इंस्ट्रक्टर को बोलता है मत करा। और है ना गजब की ऑब्जर्वेशन, है ना गजब की जीने के तरीके लोगों के, कि जिसको ज्यादा मेहनत करनी है वो मेहनत करने से जी चुरा रहा है, जो नहीं भी करेगा मेहनत वो बच जाएगा, उसकी जिंदगी ठीक चलेगी, वो फिर और मेहनत कर रहा है। सेम इज द केस इन स्कूल, कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, जो टॉप में आ रहा है, वो और पढ़ाई कर रहा है। जो नीचे है बच्चा, जो 15 16 20 पोजीशन में है, जिसको मेहनत करनी चाहिए, और जो लास्ट है, जो 30 40 रैंक आ रहा है, जिसको बहुत मेहनत करनी चाहिए, वो और जी चुरा रहा है। सेम इज द केस विद बिजनेस, कि जिसके बिजनेस की भजी हुई है, या जिसका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना होना चाहिए, अरे उसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ना अपनी सीख में, अपनी ग्रोथ में। लेकिन वही है जिसके पास हजार एग्जाम कारण होते हैं, कि साहब मैं नहीं आ सकता, मुझे सब आता है, मुझे फीस ज्यादा लगती है, मैं पैसा क्यों खर्च करूंगा, मैं अपना आप ही सीखूंगा, मैं इतना साल का एक्सपीरियंस है, फलाना ढिमकाना। वही सबसे ज्यादा आनाकानी करता है कुछ नया सीखने में। लेकिन जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, जो अगर नहीं भी सीखे तब भी अच्छा चलेगा, वो और सीखने का इच्छुक रहता है। ये होती है कड़कपन की निशानी, ये होता है क्रिस्पीनेस। A crispiness which you have with you makes you more of what you are. जो हम होते हैं, हम वो और बनते जाते हैं। तो अगर आप अच्छे हो तो आप और अच्छे बनते जाओगे, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे और अच्छे ना हो वैसा बनते जाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको वो साइकिल तोड़नी पड़ेगी, कॉन्शियस हो। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, स्टॉप वर्किंग on the job, start working on yourself. Because the second part of what I'm going to share with you right now is this very fact कि इकोनॉमिक्स क्या है। Economics is the money which you make when you bring some value to the marketplace. That is what economics is. कि what value do you bring to the marketplace? उसके आधार पे you get paid. That is simple. अगर economics इससे simple करूं, इससे simple नहीं हो सकता। You get paid for the value which you bring to the marketplace. अभी इसमें आप एक दो तीन बातें समझो। भी क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट डू सो व्हेन अ पर्सन डिवैल्यूएस, वो अलग बात है, अभी करते हैं उसमें। पहले अपनी वैल्यू तो बढ़ाओ। वैल्यू आपकी बढ़ी नहीं है, आपको डिवैल्यू की पड़ी है कि लोग डिवैल्यू कर रहे हैं। अरे बाबा, अगर डायमंड हो आप, अगर आप डायमंड हो तो आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है ना यार, उसकी आंख की प्रॉब्लम है, उसको दिख नहीं रहा है। तो उसकी उसके ना दिखने से आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो डायमंड बनो। अरे सर, लोगों को पढ़ी नहीं होती, हम कितनी भी अच्छा बन जाए कंपनी में, किसी को पढ़ा नहीं होता है, कोई सब ऐसे ट्रीट करते हैं। अरे उसके आंख में मोती बिंद है, आप क्यों डेवलप करना बंद कर रहे हो खुद को? वो अंधा हो रहा है और आपने कहा अच्छा वो अंधा है, तो हम भी अब जिंदगी ऐसी जिएंगे। अरे आप तो अच्छे बनो। सो यू कीप ऑन इंप्रूविंग एंड इंक्रीजिंग योर वैल्यू। उसको बीमारी है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसको कैंसर है, व्हाई आर यू सफरिंग यार? सो डोंट वरी अबाउट पीपल नॉट वैल्यूइंग यू। डोंट वरी, विल टॉक, दैट्स अ वेरी क्रिकोल चिंदीगिरी वाला वो प्रॉब्लम है। मेन मेन प्रॉब्लम है कि आर यू वैल्यूएबल? आर यू द वन who's there where the world will be willing to pay for you? पहले वो तो बनो। जब वो बनोगे तो फिर कहां वर्ल्ड कौन सा पे करेगा वो बाद में जाएंगे, पहले बनो तो सही। सो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इकोनॉमिक्स बोलता है यू गेट पेड फॉर द वैल्यू व्हिच यू ब्रिंग टू द मार्केट प्लेस। अब ये मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस इज वेयर, जो बोलते हैं मंडी, मंडी है ये जैसे आप जाते हो सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी है, आड़त है, या जो भी आप बोलते हो उसको। तो वहां मंडी में आप अपना सामान लेके आते हो, दैट्स अ मार्केट प्लेस। तो आप वहां पर कौन से वैल्यू का प्रोडक्ट ला रहे हो, यू विल गेट पेड अकॉर्डिंगली ना। आप बासी सब्जी ला रहे हो, व्हाई विल यू गेट पेड फॉर फ्रेश? बट इफ यू गेटिंग फ्रेश, गुड साइज वेजिटेबल्स, यू गेटिंग सम ग्रेट क्वालिटी वेजिटेबल्स, व्हाई विल यू नॉट गेट पेड?
तो आप अपने रोज जाते हो अपने मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस इज योर कंपनी वेयर यू वर्क, मार्केट प्लेस इज दी कस्टमर टू हुम यू रीच आउट टू, और आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हो। आप अगर काम करते हो तो आप अपनी स्किल, अपनी मेहनत के साथ उसके पास जा रहे हो। तो आप पूछोगे कि आप फ्रेश क्रिस्पी वेजिटेबल हो कि नहीं, या आप बासी सब्जी हो। और बासी सब्जी आज के मार्केट में ताजा दाम मांग रही है। अरे येड़े, नहीं मिलेगा। कुछ तो सड़ गई है सब्जी, वो भी कहती है कि सर पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा, अरे गनीमत है कुछ मिल रहा है। तुम सड़ गए हो, स्मेल आ रही है तुम में से। तुम्हारी सोच समझ काबिलियत 15 20 25 साल पुरानी है। वो सोच समझ से तुम्हें अभी क्या नया पैसा मिलेगा? तुमने क्या नया सीखा, क्या नया किया? और मैं इतनी बार लोगों से जब मैं बात करता हूं, सर हमारी कंपनी ने नहीं सिखाया। अरे नहीं सिखाया, तुम तो सीखो, तुम तो अच्छे बनो। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुना नहीं सुना ये डायलॉग? इस पे गाना भी बना था एक। तो देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू पे, बट आर यू द वन? सो आप ये समझो कि द वैल्यू व्हिच यू ब्रिंग। तो ऐसे लोग, जस्ट टू ब्रेक इट, टू मेक इट सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू, ऐसे लोग हैं जो 500 रुपए रोज कमाते हैं। तो महीने का हो गया 15,000 रुपया। है ऐसे लोग जो 500 कमाते हैं। इसका मतलब क्या है? उनको 500 का 1000 क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज वो उतना ही वैल्यू लेके जा रहे हैं मार्केट प्लेस में। व्हाट इफ दे वर टू इंक्रीज द वैल्यू and they make their value twice? Can they be paid twice? Yes, of course they can be paid twice. तो उनको 1000 भी मिल सकता है रोज का। Are there people who are getting 5,000 rupees a day? ऐसे लोग भी हैं क्या? हाँ है, because the value they bring. क्या ऐसे लोग भी हैं जिनको साल का करोड़ रुपए भी मिलता है? मिलता है। थोड़ी ना मार्केट पागल है, दुनिया पागल है कि ऐसे 1 करोड़ रुपए दे देगी साल का किसी को। अरे उसके अंदर वैल्यू देखते होंगे ना, तभी तो उसके ऊपर वो दांव लगाते हैं कि हाँ ये सब्जी इतने की है। सो आप अपने आप को अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो, तो व्हाई विल द वर्ल्ड पे? व्हाई विल योर कंपनी पे? व्हाई विल योर कस्टमर्स पे? लास्ट 25 years ऑफ माय लाइफ मैंने इतना अपने ऊपर काम किया है, इतना मैंने काम किया अपने ऊपर। आई केप्ट ऑन एडिंग वैल्यू, आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मेहनत पे मेहनत पे मेहनत करा जाए। अरे मेरे दोस्त मानते नहीं कि मैं ऐसा, आई एम अ स्पीकर, आई एम अ कोच, आई एम मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। I am there heading organizations which have turnovers of thousands of crores. उनको ऐसा विश्वास नहीं होता मेरे दोस्तों, because they had seen me what I was 25 30 years ago. They had seen me in school 40 years ago. अभी मैं कल, मेरे अरर समस्ती मीट थी एंड वी वर देयर। तो उसमें जिनके यहाँ पर हमारी मीट थी, सचिन पारेख, very well renowned chartered accountancy firm here in Pune. And he says to everybody, he says, I know MG since 97 98. And he says कि what I know of MG in 97 98, जो मैंने उनको देखा 97 98 में, और जो आज MG है, ये दुनिया ही अलग है। कोई कह नहीं सकता कि सेम MG। And why I'm talking about myself is because I worked from 1997, जब मुझे कुछ नहीं आता था। From that time till now, मैंने अपने को अंदर कूट कूट के मैंने अंदर भरा। अगर मैं अगर कैलकुलेट कर पाया ना, तो मुझे लगता है मैंने 2-3 करोड़ रुपए अपने ऊपर लगाया है। साल का कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो मैं अपने फिजिकल फिटनेस पे लगाता हूँ, सिर्फ ट्रेनर को देता हूँ, जस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। और ये अगर मैं ये लगा लूं 20 साल से मैं देते आया हूं, तो मैंने 30-40 लाख तो मैंने यही अपने फिजिकल फिटनेस के ट्रेनर को दिया है। आई पुट इन मनी, और कम से कम मैंने 2-3 करोड़ रुपए अपने ऊपर लगाए। और इसलिए आज मैं 40 लाख रुपए एक एंटरप्रेन्योर से मांग सकता हूं।
The world pays. The world pays. But are you bringing value to the marketplace? That's the question. तो हम क्या करते हैं, नहीं सर हमें मिल रहा है, कंपनी दे रही है, अरे वर्क ऑन योरसेल्फ. राइट फ्रॉम 1997 मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया. मेरे पहले जो ट्रेनर थे डॉक्टर भरत चंद्रा, और मैं हमेशा कहता हूँ बैचेस में एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं तो सेल्स में था, मैं उनका बैच खड़ा करता था और मैंने ऐसा 300-400 लोग उनके लिए इकट्ठे किए और बैच चालू होने वाला है. एंड मैं उनके लिए 400 लोग लेके आया, उनको मैं पैसे कमा के दे रहा हूँ और उनका बैच चालू होने वाला है. तो मैं स्टेज में पीछे गया, मैंने कहा डॉक्टर आई विल आल्सो जॉइन द बैच, मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना है. ही इज वेरी गुड, सिट. अच्छा, मैं वो लोग लेके आया, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो वैसे ही बैठ सकता हूँ. तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए उनसे पूछा कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं बैच के अंदर. मैं तो वैसे ही बैठ जाता, उनको मालूम नहीं पड़ता मैं बैठा हूँ. तो मैंने अपनी ईमानदारी, अपनी फॉर्मेलिटी के उनसे पूछा कि मैं बैच में बैठ जाऊं. उन्होंने कहा बैठ जा. तो मैं मुड़ा और मैं जाने लगा स्टेज से नीचे को. पर्दा, कर्टन्स बंद थे क्योंकि प्रोग्राम चालू नहीं हुआ था. इधर है मनीष. हाँ, निकाल 7,500 रुपए. आई थॉट ही इज जोकिंग. मुझे लगा मजाक कर रहे हैं कि यार ये पैसा मांग रहे हैं. कह रहे नहीं, निकाल पैसा. तो मुझे फिर भी लगा कि ये शायद ही वांट्स टू, एंड ही इज गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. तो मेरे को लगा फिर भी मजाक कर. मैं हंसा, मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो. कह रहे तेरे को सीखना पब्लिक स्पीकिंग. मैंने कहा हाँ. पैसा निकाल, ये फ्री में कोई बैठेगा नहीं बैच के अंदर. आई वाज शॉक्ड बिकॉज़ मैं उनके लिए पार्टिसिपेंट्स लेके आया. ये तो मेरा प्रोग्राम है, मैंने ऑर्गेनाइज किया है. फ्रॉम मी आल्सो इज आस्किंग मनी. एंड मैंने ऐसा जेब में हाथ डाला. मेरे पास थे नहीं 7,500 रुपए, मेरे पास 2-3 हजार रुपए थे. उन्होंने ऐसे लिए, अपनी जेब में रखे और कहा बाकी अभी देना, मुझे शाम को बैच खत्म होगा उसके बाद मुझे देना. मेरा विश्वास करो, मेरे हाथ से वो 3-3,500 रुपए गए. उसी समय मुझे पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा आने लग गया था. I started learning and I realized this is so very true and so very important कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू हमारे अंदर आने चालू हो जाती है. That's the first lesson which I learned way back in 1997. तो ये उसके बाद मैंने प्रोग्राम्स में करते रहा, पैसे पे पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहा. चाहे वो किशोर फड़के हो जिनसे मैंने इमोशनल बिहेवियरल सीखा कि हाउ डू यू ब्रिंग इन अ रैशनल इमोशनल थेरेपी, मैंने कॉन्सेप्ट सीखा उनसे. एंड आई बिकेम इमोशनली मच मोर मैच्योर. whether be going to ISB to learn family business management, 4 दिन वहां लगाए, paid lakhs of rupees for those 4 days. Whether be going to Isha Inside, being Sadhguru Nayan Murthy ko suna, the best of speakers wahan suna, paying lakhs of rupees there. I went to US for a 15-day program to become a master level instructor on outbound programs. Became one of the best performers there in that program. तो मैं 2000 अर्ली 2000 में फायर वॉक करना, आंख पे चलना, एरो बेंड करना, ये सब जो हम आउटबाउंड प्रोग्राम्स करते थे उसकी मास्टरी करके आया वहां से. मतलब डॉन बेवरेज जिनसे मैंने बिजनेस सीखा, कोच केविन जिनसे बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखा. सो मेनी थिंग्स व्हिच आई डिड बिकॉज मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी थी. एंड केप्ट ऑन इंप्रूविंग, केप्ट ऑन इंक्रीजिंग माय वैल्यू. बिकॉज जब मेरी वैल्यू बढ़ेगी तो मार्केट प्लेस पैसा देगा यार. दैट इज इकोनॉमिक्स. और क्या है इकोनॉमिक्स. तो आपने अपने ऊपर पैसा नहीं डाला, पूछो अपने आप से. So you have not worked on yourself unknowingly, knowingly. And that is why the company does not pay, the customer does not. मेरा पहला बैच तो था, उसकी फीस थी 2,500. From 2,500 रुपया to I am charging companies 50 for 60 lakh rupees for a year intervention. 1 से 2,500 से लेके ये 60 लाख का सफर, ये कूट के जो भरा ना अंदर मसाला आपने, ये वहां से आया. तो मुझे सुनते हो तुम लोग, तो ये मैं जब हैप्पी माइंड्स लेता हूं ना फ्री में, तो ये मत समझो कि दिस इज द ओनली वे इन लाइफ यू विल लर्न. इन्वेस्ट करो. ये तो मैं आई वांट टू कीप द फायर अलाइव इन यू. इन्वेस्ट करो, मेरे थ्रू करो, कहीं और करो, आई डोंट केयर, बट पंप मनी इनटू यू. दिस इज वन लाइफ यू गॉट, एंड इन दिस वन लाइफ ऑफ योर्स, अगर तुम ऐसा स्ट्रांग नहीं बनोगे, तुम अपने आप को काबिल नहीं बनाओगे, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, तो फिर क्या मतलब है.
एंड आई एम टेलिंग यू देयर सो मेनी जो मेरे साथ आए बैच में, मेरे बैचेस की जिन्होंने किए, द वे दे हैव ग्रोन, द वे दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी ऑन देमसेल्व्स. अभी एक ने प्रशांत लिख रहा है कि बिफोर द गेम ऑफ बिजनेस प्रोग्राम I did not spend money on myself, and that's the way it is for people. नहीं करते अपने ऊपर इन्वेस्ट. So don't work hard on the job. Work hard on yourself. Don't work hard on the customer. Work hard on making a great product in the company. जान लगा दो कंपनी में अच्छा प्रोडक्ट बनाने की, अच्छा माल बनाने की. फिर क्यों नहीं बिकेगा यार? क्यों नहीं कस्टमर पैसा देगा? क्यों नहीं देगा? So I learned the finer aspects right from my own self. Physical fit कैसे रहते हैं, डाइट पे क्या रखते हैं, मैंने वो सीखा. मैं डाइटिशियंस लगाए, उनको पैसा दिया. I worked on my communication skills. I worked on my negotiation skills, my attitudinal skills, my emotional management. I learned on the business aspects. कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कैसे टीम को हैंडल करते हैं, लीडरशिप लाते हैं, यू नो सेकंड लाइन लीडरशिप कैसे डेवलप करते हैं. आई लर्न अबाउट कल्चर बिल्डिंग कैसे होता है, कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन आप ला सकते हो. सब सीखा ही ना. सब सीखा तो उसके बाद आज मैं देने के काबिल. एंड द क्वेश्चन यू गॉट टू आस्क योरसेल्फ इज, आर यू वर्किंग हार्ड ऑन द जॉब और आर यू वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ? बिकॉज इकोनॉमिक्स बोलती है you get paid for only the value which you bring to the marketplace. That's what economics says. तो आप ही के लेवल के काम के लिए जो आप काम कर रहे हो, उसी काम के लिए किसी और को बहुत पैसा मिलता है. तो people say we get paid. एक ने तो मुझे बोला, सर I get paid for my time. I said यही कारण है जिससे तू ग्रो नहीं कर रहा है. You never get paid for your time. If you want to get paid for your time, then sit at home ना. You'll get paid at home. होता है कैसा? We always get paid for the value which we give in that time. You never get paid for time. तो हम उस टाइम में क्या वैल्यू देते हैं? And that's why I always say when मेरे personal coaching assignments होते हैं, I always say never count it with time. Always connect it to the value which I give. The value can be just 10 minutes of my time. Just 10 minutes. अभी 10 दिन पहले एक मेरा प्रोग्राम था, उसमें it was just an introductory program of mine, and one of the participants he came and break time था, तो मैं I was having fruits and वो आया मेरे पास and he shared a problem of his कि सर ऐसा सा है. मैं सुना, he has not joined my program. मेरा ऐसा एक प्रोग्राम चल रहा है जो it's a kind of introduction to the रस समस्ती program, and there is no financial commitment, there is no engagement, there is no transaction, कुछ नहीं हुआ है. बट मैं बैठा हूँ और वो आके मेरे से पूछता है कि सर ये चैलेंज है. And I gave my insight क्योंकि I had the value in me. मैं था इतना मजबूत कि मैं उसको दे पाऊं कुछ. मैंने उसको ऐसा 2 मिनट के अंदर मैंने एक बोला कि ऐसा कर. He came next week and he says वो करने से सर मेरा 20 लाख रुपए महीने का चालू हो गया फ्लो. आपके एक सजेशन से मेरा ये चालू हो गया. And he shared it with everybody. कि सर से मिला 2 मिनट, तो इट इज नॉट कि मैं 3 घंटे बैठा, उस 3 घंटे के अंदर उसको 20 लाख का मैंने एक एडवाइस दे दिया जिससे उसका 20 लाख रुपए महीने का काम चालू हो गया. एंड इसे सर इमीडिएटली हो गया, नेक्स्ट दिन से चालू हो गया. इट वाज जस्ट फ्यू मिनट्स ऑफ माय इनसाइट. तो फ्यू मिनट्स के लिए मुझे 25 साल लगे अपने आप को ठोक ठोक के कुछ बनने, और आज वो फ्यू मिनट्स लगता है. तो लोग बोलते हैं सर अच्छा ये इतने समय कितना हो गया आप? अरे बाबा इतने समय नहीं है, 25 साल लगा. 25 साल लगा, करोड़ों रुपए लगे, तब जाके आज जो मैं बोलता हूं उसमें कुछ दम होता है. तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट आपकी भी काम, आपकी भी लाइफ में ऐसा हो सकता है, होना चाहिए कि आप जो काम करें उस काम के लोग बोले यार वी कैन पे हिम 4 टाइम्स, वी कैन पे हिम 10 टाइम्स बिकॉज यू ब्रिंग दैट वैल्यू टू द मार्केट. तो वो क्यों नहीं हो रहा है? पूछो अपने आप से, पूछो. और आप लगता है कि हाँ सब होना चाहिए, देन वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ. और जब वर्क करना ही है, अपने आप को अच्छा बनाना ही है, तो आ जाओ मेरे पास.
then I should tell you that come to me. Whatever programs we have, I think we have a couple of programs coming up next month or so. बेटा कोई programs आ रहे हैं हमारे? We have 2 programs coming up. One is the Life 360 program coming up in 24, 25, 26th of March. इसमें आना 3 दिन जबरदस्त अगर मेरे साथ समय बिताना है टू अंडरस्टैंड ये ठोक ठोक के अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो इस प्रोग्राम में आओ. और अगर लगता है सेल्स प्रोफेशनल, इफ यू आर इनटू सेलिंग और सेल्स में आना है, देन कम फॉर सेल्स प्रोग्राम. इट इज हैपनिंग इन अप्रैल. जबरदस्त प्रोग्राम. मेरे साथ आओगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट सेलिंग इज. तो अपनी वैल्यू को बढ़ाओ यार. जितनी वैल्यू बढ़ाओगे उतना आप मार्केट प्लेस में लेने योग्य बनोगे. ये 25-30 हजार बचा लोगे, लेकिन वो लाखों कैसे कमाने वो नहीं सीख पाओगे. ये 8-10 हजार बचा लोगे, लेकिन अपना एक वजूद बनाने से आप चूक सकते. कैन यू पुट मी ऑन स्क्रीन? तो मेरा आपसे ये कहना है कि इंश्योर दैट यू कीप ऑन बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. और ऑप्शन नहीं है यार, और ऑप्शन नहीं है. तो ठंडे नहीं बैठो यार. क्या मतलब, व्हाट विल यू लूज? You lose nothing. And what you think you're losing, that money is not actually वो तुम्हारा था भी नहीं. तुम लेके ना आए थे वहां से जब पैदा हुए थे. तो तुम्हारे जेब में जब तुम पैदा हुए तो पैसा तुमने दिया बाप को, ये ले मेरे एजुकेशन का पैसा. You didn't give that. You came empty-handed and you will go empty-handed. तो जो यहाँ कमाया यहीं गवाएंगे ना. और गवाएंगे मतलब अपने ऊपर लगाएंगे. That's how it is. क्योंकि और अपने ऊपर क्यों लगाएंगे? क्योंकि लगाएंगे तो और अच्छा बनेंगे, लगाएंगे तो और अच्छा बनेंगे, अच्छा बनेंगे तो और कमाएंगे, तो और लगाएंगे. ये तो साइकिल है. और क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी मूविंग, मनी मूविंग. आपने कमाया लगाया, कमाया लगाया, कमाया लगाया. Why will the economics not move? That's what economics is. That's not how the economy of a country moves. तो अपने आप को काबिल बनाओ. वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ. बोलते हैं ना कि अगर हमें हायर शेल्फ में जाना है, एक मेटाफर मैंने बहुत पहले सीखा था, समझा था. अगर हमें हायर शेल्फ से कुछ निकालना है, भैया घर में ना वो होती हैं अलमारियां होती हैं, तो ऊपर वाली शेल्फ होती है, हाथ नहीं पहुंचता वहां पर. तो हम क्या करते हैं, हमें नीचे स्टूल लगाते हैं और स्टूल पे चढ़ते हैं, और उस चढ़ के हम ऊपर जाले शेल्फ से, कभी हमें सूटकेस निकालना है, कभी कोई बैग निकालना है, हम निकालते हैं. इसी तरह आपकी लाइफ में जो आपकी वेल्थ है वो हायर शेल्फ पे है. जहां तक आपका हाथ पहुंचा आपकी वेल्थ मिल गई, लेकिन अभी और अगर वेल्थ चाहिए तो हायर शेल्फ पे है. उस शेल्फ में ऊपर चढ़ने के लिए यू नीड टू हैव द स्टूल ऑफ योर कैपेबिलिटी. यू नीड टू हैव द स्टूल ऑफ योर नॉलेज. You need to have the stool of your own attitude, which is of higher level. You need to have a stool of, of your value. That you are much more value based now than what you were. You have much more content inside you than what you had some time back. जब आप उस stool पे खड़े होते हो, खुद के, अपने काबिलियत के, अपने कम्युनिकेशन के, अपने ओवरऑल थिंकिंग के, अपने ओवरऑल समझ एंड अंडरस्टैंडिंग के, जब आप उस stool पे खड़े होते हो, तो फिर हायर शेल्फ जो है ना, वहां हाथ पहुंच जाता है और वहां आपकी वेल्थ है. So how do you make more money? The money is on the higher shelf, and for that money to be yours, you need to raise your level. और कोई ऑप्शन नहीं है सर. वो पैसा अपना आप गिरने वाला नहीं है. वो भूकंप आएगा तब गिरेगा, और गिरेगा तो तुम उसमें मर ही जाओगे. तुम्हें उठना ही पड़ेगा और तुम्हें अपने आप को राइज करवाना पड़ेगा. इससे ज्यादा एग्रेसिवली मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ के लिए नहीं बोल सकता. हिट किया क्या आज का एचएम? बहुत ज्यादा हिट किया. एंड दैट इज व्हाई वी हैव पीपल हु कम एंड हर बार रिपीट. एचएम में कितने लोग क्यों आते हैं? बिकॉज दे कीप ऑन, दे वांट टू मेक देमसेल्व्स बेटर. क्यों मेरे लाइफ से, मेरे प्रोग्राम्स में अदर समस्ती में भी वी हैव रिपीटर्स हु कम इन. वी हैव इन द लाइफ 360 वी हैव पीपल जिन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले किया, वो दोबारा आते हैं. क्यों आते हैं? कहते हैं यार सर वो 2 साल पहले किया, अभी थोड़ा सा फिर धार ब्लंट हो गई है, फिर तेज करने आते हैं. दे कम अगेन एंड इट इज सो वंडरफुल टू सी. थोड़ा ना एक किताब पढ़ ली एक बार तो सब समझ में आ गया. हम बार बार पढ़नी चाहिए किताबें. हर बार कुछ नया समझ में आता है, कुछ नया टेक अवे होता है. कुछ लोग जो है टिक मार्क के लिए करते हैं, मैंने ये कर दिया चलो टिक मार्क हो गया, लाइफ 360 प्रोग्राम कर दिया टिक मार्क हो गया.
अरे टिक मार्क नहीं करना है यार, यहां पर टिक करना है, यहां पर होना चाहिए। लोखंड बन जाओ तुम लोग, इतना काम होना चाहिए कि दुनिया कितना भी ठोके अपने को, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। लोखंड है हम, लोहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस लोखंड को बनने के लिए उस भट्टी में जाना पड़ेगा जहां पर तुम तप के निकलो बाहर, इतने सख्त, इतने मजबूत निकलो कि तुम्हें फिर कोई ऐसा हल्का सा झटका तुम हिला ना पाए। So I wish you that you make a great life for yourself and keep on working on yourself and keep on making yourself better and better and better. सोचो, देखो आसपास कैसे मैं अच्छा बन सकता हूँ, कैसे मैं और अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ, सोचो उसमें। और अगर लगता है you need some inputs, take inputs from anybody, everybody who's around you. Rajesh Mandlik का बड़ा अच्छा नोट आया. He says one of my employees is spending around 1.5 lakhs on one course to improve his skills. I asked him why did he not ask the company. He said that he does not know whether it will be useful to contribute in company work. I'm seeing a leader is born in him. Absolutely, Rajesh. Feel blessed that you have somebody. हमें ना अक्सर ढ लोग चाहिए होते हैं अपनी कंपनी में, जो ज्यादा पर ना निकाले, जो ज्यादा उड़े ना। अरे ऐसे लोगों के साथ क्या करना है? वो याद है डायलॉग शोले का कि ठाकुर ने फौज बनाई है किसकी, मैं बोल नहीं सकता ये प्रोग्राम में, बट यू नो दी वर्ड व्हिच गब्बर यूजेस फॉर ठाकुर, कि ठाकुर ने किसकी फौज बनाई है। सो हमें वो फौज चाहिए कि जो ना डेवलप हो, ना ग्रो करे, ना पगार अच्छी ले, ना हमें तंग करे, but somebody who's growing, somebody who's eager, somebody who wants to read books, somebody who wants to question, somebody who wants to make strategies, somebody who wants to come with some inputs, somebody who has ideas. हमें ऐसे लोग भाते नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को पैसा देना पड़ता है। जब feel blessed if you have one Rajesh with you. चलो प्लान बनाओ, आगे कुछ करो, and I strongly suggest, अगर तुम लोग को लगता है, it's okay if you think I'm selling, but you think that Life 360 should be the program for you. जो लोग मुझे इतना सुनते हैं, तुम लोग हर HM में सुनते हो, I feel that it's time that you go for a structured program. It's time that for you that you come and you make yourself a part of a structured input to you, so that you become much more powerful. I will lightly mat lo life ko yaar, lightly mat lo. I'm roaring like a tiger because I want the tiger in you. I want that lion in you. That lion should be awake. Lions get paid, yaar. Lions get paid. They get paid well. Chalo. I'll see you next HM. Yes, श्रीपाल, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो चिंदीगिरी की जिंदगी मत जियो यार साल, पैसा बचा बचा के तुम लोगों ने अपनी जिंदगी को ऐसा चिंदीगिरी बना दिया है कि वेर मेरा बासी बदबू आती है। बासी सब्जी लेके तुम लोग बेचते हो मार्केट में और नया पैसा मांगते हो, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा।